Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello students, I am Soni Pawar, your English tutor. Today we are going to start with in class 10th first flight book first chapter, A Letter to God. So this story, A Letter to God, is written by G.L. Flutens. The introduction of the story is, that is, the main part of the story is, that is, a farmer, Lencho. So from the name you can guess A Letter to God, कि कैसे एक फार्मर जब उसका भरोसा टूट जाता है कैसे वो इवन लेटर लिख देता है भगवान को. So what happens in the story? Let's read the story and know further. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promise a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. So here the house, so entire valley, in the entire valley there was only one house at the top of the hill. Crest means at the top, that is top of the hill, only one house was there. So from the height, that is from the top of that hill, उस घर से क्या दिखाई देता था, जो नीचे नदी बहती थी वो दिखाई देता था. And there was a beautiful corn field. Corn, that is corn, जो मक्के की फसल होती है उसकी जो खेती बाड़ी हो रही थी नीचे वो साफ नज़र आ रही थी. Dotted with flowers, dotted with flowers means उसमें फूल थे, मतलब लग रहा था कि हार्वेस्ट बहुत, फसल जो है बहुत ही अच्छी हुई है. That always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो बस एक ही बारिश की ज़रूरत थी, थोड़ी अच्छी बारिश हो जाएगी तो वो फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी. Throughout the morning, Lencho, so the main character of the story, the farmer Lencho, the farmer Lencho who knew his fields intimately, जो अपने खेत के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, closely he know about his field, had done nothing else but see the sky towards the north. तो सुबह से लेंचो यही कर रहा था, बस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा जा रहा था, बिकॉज ही न्यू जो विंड्स आती है नॉर्थ ईस्ट तरफ डायरेक्शन से वो बहुत वहाँ से ही बारिश होती है. सो ही फ्रॉम द मॉर्निंग ही वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इट सीम्स ही वॉज वेटिंग फॉर द रेन. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. तो जैसे ही वो देख रहा था, closely he was looking, so what he is saying, now he replied, here woman, this Lenchos, he is referring to his wife. तो जैसे ही वो देख रहा था तो उसे थोड़ा महसूस हुआ कि शायद अब बारिश होने वाली है. एंड शी वॉज अग्रीइंग, जो उसकी वाइफ थी उसके साथ अग्री हो रही थी. येस, गॉड विलिंग, अगर भगवान की मर्जी हुई तो ज़रूर बारिश होगी. एंड एट द टाइम शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर. सपर हियर मीन्स डिनर. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. So as predicted, what happens here now? Lencho's wife said, agreed with him, yes, God's willing. जब वो कहती है हाँ भगवान की मर्जी होगी तो ज़रूर बारिश होगी. The older boys, तो जो लेंचो के जो बड़े लड़के थे, बड़े बेटे थे, वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बेटे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे. Until the woman, तो उसी वक्त की जो मदर हैं उन्होंने सबको खाने के लिए बुलाया. तो जैसे ही वो खाना खाने बैठे तो तेज बारिश होने लगी, जैसे ने लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था.
Big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. तो उसी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जहाँ जिस तरफ लेंचो देख रहा था, जब उसने देखा कि उसी डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा काले बादल आए हैं और अपने साथ बारिश लाए हैं. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. Big drops are 10 cent and the little ones are 5. So, फ्रॉम दी एक्सप्रेशन, लेंचो के एक्सप्रेशन इतने मतलब ज़्यादा खुश हो गए कि जैसे ही वो डिनर कर रहे थे वो बाहर गया रेन को एन्जॉय करने के लिए. ही वॉज हैप्पी टू फील द फ्रेश एंड स्वीट एयर ऑफ द रेन. ही वॉन्टेड टू एन्जॉय द रेन. ही वेंट आउटसाइड एंड ही एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस. बहुत खुश होके वो बोलने लगा. He exclaimed with happiness that the big drops or 10 cents. So, here he started comparing. जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें थी उससे कंपेयर करने लग गया था कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10-10 के सिक्के हैं एंड द लिटिल वंस और 5 सेंट. दैट इज द लिटिल वन. जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो 5-5 के सिक्के हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. So, he was very satisfied with the expression, that is he was longing for the rain, and as soon as the rain he knew now he will get a good harvest. So, he can see that all his field now covered with the droplets of rain. But suddenly a strong wind began to blow. Along with the rain, very large hailstone began to fall. So, here what happens now? बारिश जैसे जैसे बारिश हो रही थी अचानक से हवा और तेज हो गई और उसके साथ हेलस्टोन. हेलस्टोन मीन्स जो ओले होते हैं ओले गिरने लग गए. सो नाउ ही रियली बिकम वरीड. began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. These did newly. Now he is comparing कि ये जो ओले गिर रहे हैं एकदम चांदी के सिक्के हैं और जो उनके बेटे लेंचो के जो बेटे थे they felt very happy. They started collecting the frozen pearls. Frozen means जो जमी हुई बर्फ थी जो टुकड़े गिर रहे थे उनको कलेक्ट करने के लिए वो बाहर भागने लग गए. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. So now what happens? Lencho became टेरिफाइड. बहुत ज़्यादा डरने लग गया कि अगर ये टाइम से रुका, अगर ये जो ओले रुके नहीं तो क्या होगा, सारी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी. एंड हैज़ एक्सपेक्टेड सेम थिंग हैपेंड. व्हाट हैपेंड? ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और लगातार बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे थे और जैसे उसने सोचा था पूरी जो वैली, उनके घर थे, जो कॉर्नफील्ड, हिल साइड, एवरीथिंग कवर्ड विद द hailstone. And what happens? It almost covered like a salt. जैसे लग रहा था कि सब जगह पे नमक बिछा हुआ है. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. So what happened on the next day when he went out and saw there was not even a leaf left on the tree. So दूसरे दिन जब उन्होंने देखा तो क्या देखा? द hailstone ने टोटली सब कुछ बर्बाद कर दिया था. पेड़ों में इवन पत्ते भी नहीं बचे, सारे के सारे गिर गए थे. सो द कॉर्न वॉज टोटली, जो उनकी जो फसल थी वो भी सारी की सारी बर्बाद हो चुकी थी. द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट. जो प्लांट्स, जो पौधों में जो फूल थे वो टोटली दे ऑल वेर गॉन. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. सो लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing.
This year we will have no corn. So what happened? He stood in the middle of the, वो एकदम अपने जो खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया and it was feeling lost. एकदम दुखी हो गया और अपने बेटों से कहने लगा, he was comparing कि जो डिस्ट्रक्शन हेलस्टॉर्म ने किया है, मतलब हेलस्टॉर्म ने जो डिस्ट्रक्शन किया है बिल्कुल नहीं बचा है. एटलीस्ट अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट एक फ्लाइंग इंसेक्ट है दैट मूव्स इन अ वेरी लार्ज नंबर. लोकस्ट इज अ फ्लाइंग इंसेक्ट दैट मूव्स इन अ वेरी लार्ज ग्रुप और नंबर्स, ईटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग large quantities of plants. So you all must have heard, टिड्डी के बारे में आपने सुना होगा. When they come they destroy the whole field. Okay, so same thing he is saying कि जो locust, अगर locust का attack होता है, that is टिड्डी जो attack करती है at least वो तो कुछ छोड़ के जाती है, but here the hailstorm has left nothing. So he is saying that we all go hungry this year. He started complaining, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. But उस अकेले घर में, जहाँ पे जो अकेला घर रह गया था टॉप ऑफ द हिल लेंचो का, जो सारे मेंबर्स थे उन सबको किस पे भरोसा था? दैट इज गॉड. स्टिल दे हैड फेथ इन गॉड दैट गॉड विल श्योर हेल्प हिम. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. So now, suddenly he got a positive attitude in himself. लेंचो को अपने अचानक से positive attitude आ गया अपने आप में और वो कहने लगा, Don't be so upset. खुद से कहने लग गया कि मुझे positive रहना चाहिए. टोटल लॉस, दैट इज अ टोटल लॉस, स्टिल आई हैव फेथ इन गॉड. वो कहने लगा मुझे भगवान पे भरोसा है, श्योर गॉड विल हेल्प मी. नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरते नहीं है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience, that is moral of right or wrong. So all through the night, सारी रात यही सोचता रहा कि जो भगवान है वो सब कुछ देख रहे हैं. He knows हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको सब पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है. तो श्योर गॉड विल कम टू हेल्प. तो गॉड विल श्योर हेल्प करेंगे. ही knows what is right, what is wrong. Lencho was an ox of a man. Here ox of a man, that is he is a very strong, hard working man. Ox of a man means a very strong ox, very strong hard working man. So Lencho was very hard working from the beginning, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. तो ये बहुत मेहनती था लेंचो, बहुत ज़्यादा काम करता था, बट स्टिल उसको लिखना भी, पढ़ना लिखना भी आता था. तो उसने क्या सोचा अब आगे? द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. नाउ व्हाट हैपेंड? तो दैट इज फॉलोइंग संडे. तो जैसे ही संडे आया एट डे ब्रेक, दैट इज एट डे ब्रेक इन दी during the sunrise, what he did? He started writing a letter to God. भगवान को एक चिट्ठी लिखने लगा, which he himself would carry, जो खुद क्या है लिख के ले गया और उसको पोस्ट किया. That is he mailed it. It was nothing less than a letter to God. So now it was nothing, just a letter to God. तो भगवान ने उसने भगवान को चिट्ठी लिखी. Now let's see what happens next. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. So now what he wrote, भगवान को कंप्लेन करने लगा, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली will be hungry this year, मतलब इस साल हम भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos. So here pesos is a Latin American currency, जो Latin American currency है pesos. So now he is demanding for 100 pesos. So he is demanding here for 100 pesos from God in order to show my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. So now what he is saying? He is saying to God कि मुझे कैसे भी 100 pesos दे दीजिए ताकि मैं वापस फसल उगा सकूँ.
5 अगेन टू लिव until द क्रॉप्सम, ताकि अच्छी फसल हो, बिकॉज द हेलस्टॉर्म। तो वो कंप्लेन करने लगा क्योंकि इस साल जो हेलस्टॉर्म आया था वो सब सारी फसल बर्बाद कर दी है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, तो बाहर उसने एड्रेस, देयर वाज नो एड्रेस, सिंपली ही रिटन टू गॉड, लेटर टू गॉड on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to the town, and at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. So क्या जैसे ही लेटर लिखा, एड्रेस कुछ नहीं था भगवान का, जस्ट ही रोट टू गॉड एंड देन ही वेंट टू दी टाउन, और ही वेंट टू दी टाउन, सिटी में जाके इसने पोस्ट ऑफिस में से स्टैम्प लिया, उसमें स्टैम्प किया एनवेलप पे, एंड देन he dropped it, that is he mailed it in the mailbox. One of the employees who was a postman also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जैसे ही मेल बॉक्स से पोस्टमैन सारे पोस्ट दैट इज़ लेटर्स कलेक्ट करते हैं, तो पोस्टमैन ने की नज़र इसके लेटर पे भी गई। जब इसने एड्रेस देखा, देयर वाज नो एड्रेस, इट वाज जस्ट सिंपली रेफर्ड, जस्ट लिखा हुआ था लेटर टू गॉड। तो पोस्टमैन ने जब ये देखा, उसकी हंसी रुकी नहीं, वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, तो वो अंदर अपने बॉस से मिलने गए, हंसते हंसते गए। दैट इज़ बॉस वॉज पोस्ट मास्टर एंड शोड हिम द लेटर, तो उनको जो खत लिखा था लेंचो ने, वो पोस्ट मास्टर को बताने लग गया हंसते हुए। नेवर इन हिज कैरियर हैज़ अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। सो नाउ द पोस्टमैन इज सेइंग कि अब जो एड्रेस है, भगवान का एड्रेस क्या है, नेवर इन हिज करियर, ना तो इसने पहले कभी ऐसा लेटर देखा है कि कोई भगवान को लेटर लिखे करियर में, इसने पहली बार देखा है, एंड देयर इज नो एड्रेस। सो ही वाज लाफिंग। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, सो एमिएबल फेलो दैट इज अ काइंड हार्टेड एंड अ फ्रेंडली पर्सन। सो द पोस्ट मास्टर हियर, जो पोस्ट मास्टर थे वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे, एंड ही वॉज अ फ्रेंडली नेचर, ही वो थोड़े मोटे थे और फ्रेंडली नेचर थे। एंड शोड हिम, तो पोस्टमैन ने उनको लेटर दिखाया, शोड हिम द लेटर टू गॉड। ओके, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जैसे ही पोस्ट मास्टर ने भी लेटर देखा तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, सो इमीडिएटली ही टर्न, तो एकदम से हंसते हंसते पोस्ट मास्टर चुप हो गए, एकदम से सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, ही जोर से अपने उस डेस्क पे जहाँ पे वो बैठे थे, ही केप्ट द लेटर देयर, कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। सो नाउ जो पोस्ट मास्टर थे, ही टैप द लेटर ऑन द डेस्क और कहा कि देखो कितना भरोसा है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड, तो ऐसा भरोसा मैं सोच रहा हूँ मुझे भी होना चाहिए कि भगवान को ही खत लिख दिया इस इंसान ने। स्टार्टिंग अप कोरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, की कोरेस्पॉन्डेंस दैट इज कम्युनिकेटिंग विथ राइटिंग और रीडिंग, सो कम्युनिकेट कर रहा है भगवान से, तो उसको भगवान पे कितना भरोसा होगा। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. So the postmaster चाहते थे कि ये जो उसका भरोसा, ये विश्वास है गॉड पे, वो चाहते थे कि वो जो लेंचो फार्मर है वो खोए नहीं, वो चाहते थे उनका जो विश्वास है भगवान पे वो बरकरार रखे। What he did, postmaster came up with an idea, तो postmaster came up with an, उन्होंने एक आइडिया सोचा कि कैसे उसकी मदद करें। आंसर द लेटर, तो उन्होंने जल्दी से कहा कि हम इस लेटर का जवाब देंगे। बट वैन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। सो जब उनको पहले से ही पता था अगर जवाब देना है तो जो लेटर में लिखा है वो उनको क्या करना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी करनी होगी। सो वॉट ही डिड, तो ही न्यू दैट नथिंग, रिप्लाई करने के लिए सिर्फ इंक पेपर और गुडविल, दैट इज गुडविल। ओके, सो बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल।
सो मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो उनको ये विश्वास था कि अगर उसका विश्वास बरकरार रखना है भगवान पे तो उनको सिर्फ इंक पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही गुडविल जो है गुड गेस्चर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो और भी उनकी ख्वाहिश है लेटर में जो भी उन्होंने लिखा है वो भी हमको फुलफ़िल करना पड़ेगा। बट ही स्टक टू हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So, उन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला। ही asked for money from his employees. जब उन्होंने खत पढ़ा और उसमें देखा 100 पेसोस का डिमांड किया है लेंचो ने, सो ही asked for help from his employees. जो भी एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस में उनकी मदद ली कि वो अपनी जो पार्ट ऑफ द सैलरी है वो एज अ चैरिटी एज डोनेट करें, और काफ़ी दोस्तों से भी उन मदद ली पोस्ट मास्टर ने। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. जो इतना जब कलेक्शन किया अपने दोस्तों से, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से, फिर भी उनके इकट्ठे कितने हुए? मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मीन्स मोर देन 50 पेसोस कलेक्ट हुए, बट नॉट टोटल इन टोटल 100 pesos. So he was able to send the farmer only little more than half. He put the money in the envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word has a signature, God. So more than half. So what happened? More than half, it is not said कि कितना more than half, but not totally in 100. Okay. So here उन्होंने क्या किया? उसका रिप्लाई किया, लेटर में कुछ नहीं लिखा, just he signed as God. God के signature. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो दूसरे संडे जब नेक्स्ट संडे अगला संडे आया तो लेंचो सुबह जल्दी आ गया और आके उसने पूछा क्या मेरे नाम से कोई लेटर आया है. It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So what here? Next Sunday when Lencho came asking for any letter for him, it was a postman. जो postman था वो खुद उसने क्या किया? लेंचो को लेटर हैंड आउट किया. ही हैंडेड द लेटर ओके टू द एंड द पोस्ट मास्टर जो दूर बैठे थे, कुछ अच्छा किया है तो बहुत अच्छा फील कर रहे थे. एक्सपीरियंसिंग द सेटिस्फैक्शन था, उनको खुश थे ऑफ अ मैन कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, कुछ अच्छा एक्ट किया है. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से वो देख रहे थे जब पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. तो लेंचो ने जब देखा उसमें पैसोस थे, कितने पैसोस थे ये नहीं, पर वो बिल्कुल खुश नहीं था जब उसने अंदर पैसोस देखे. सर्च वॉज इज कॉन्फिडेंस. सो मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान ज़रूर उसकी मदद करेंगे और उसके लेटर का रिप्लाई देंगे, इवन फुलफिल हिज विश ऑफ गिविंग हिम 100 pesos. बट ही बिकेम एंग्री. वाई ही बिकेम एंग्री? हियर जैसे ही लेटर देखा उसको वो एकदम गुस्से से भर गया. When he counted the money, that is actually when he counted the money, why he became angry? God could not have made a mistake. तो उसको ये मन में आया जब उसने पैसे काउंट किए कि भगवान से तो ये गलती हो ही नहीं सकती. Nor could he have denied Lencho what he had requested. ना तो भगवान ये गलती कर सकते हैं, could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho. मतलब denied means refuse, मना नहीं कर सकते हैं लेंचो को. what he had, जो इसने भगवान से मांगा है, रिक्वेस्ट किया है. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तो उसको गुस्सा आ गया जैसे ही उसने देखा कि उसमें टोटल अमाउंट 100 pesos नहीं है. गुस्से से भर गया, जल्दी से वो विंडो पे गया एंड ही आस्क्ड फॉर अ पेपर एंड इंक. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling.
of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. So what happened here? Lencho went to the window. उसने जैसे ही विंडो पे जाके गुस्से में इंक और पेपर मांगा और लेटर लिखना शुरू कर दिया. राइटिंग टेबल पे पेपर रखा और लेटर फिर से भगवान को लेटर लिखना शुरू किया. ही स्टार्टेड टू राइट विथ अ मच, मतलब चेहरे गुस्से में था तो दोनों आईब्रोज के बीच में क्या लाइंस फॉर्म हो रही थी. इट वॉज शोइंग हिज एक्सप्रेशन ऑफ एंगर कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एन एक्सप्रेस हिज आइडियाज. तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, किस वजह से क्या एक्सप्रेशन था, वो उस पेपर पे उतार रहा था. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his face. When he finished, जैसे ही उसने लेटर लिख दिया, कंप्लीट कर दिया, वो विंडो पे गया, फिर से वहाँ से स्टैम्प खरीदा, स्टैम्प को लिख करके उसमें ही पेस्टेड ऑन द एनवलप विथ द ब्लो ऑफ अ फीस्ट. एकदम उसको जोर से मुक्के से मारा उसने. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. और उसने जल्दी से उस लेटर को मेल कर दिया और चला गया वहाँ से. तो पोस्टमास्टर थे, उन्होंने देखा कि क्या हुआ है, शायद वो बहुत खुश है, तो वो जल्दी से गए और मेल बॉक्स में से पोस्टमास्टर ने खुद ने वो लेटर बाहर निकाल के पढ़ना शुरू किया. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. Lencho. So what happened here? He ने गुस्से में क्या लिखा था, भगवान जो आपने पैसे भेजे थे उसमें सिर्फ 70 पेसोस है, दैट इज़ नॉट टोटल 100 पेसोस, बट मैंने तो डिमांड की थी 100 पेसोस की. तो ये बाकी के जो 30 पेसोस है वो ज़रूर आपने तो भेजा होगा, पर वो कहाँ गए? वो यहाँ में जो एम्प्लॉयज़ है पोस्ट ऑफिस के, वो सारे के सारे चीटर्स है. बंच ऑफ क्रूक मीन्स अ ग्रुप ऑफ चीटर्स. सो नेक्स्ट टाइम डोंट सेंड इट टू मी. सो ही इज़ आस्किंग कि नेक्स्ट टाइम मुझे थ्रू पोस्ट आप पैसे नहीं भेजोगे, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस, यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ है वो सारे के सारे चीटर्स है. एंड ही साइंड इट लेंचो. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.